Okay, now let's start revision of SS 210, agreeing the terms of audit engagement. After checking the independent auditor and the audit is with the accordance with the essays. Now, firstly, we have to deal with the audit engagement and we have to agree with the terms of audit engagement. Now, what's the objective of that? Precondition for the audit exist should be present. And what are the precondition used by management as an applicable framework and agreement of the management to promise on which the audit is conducted. कि उनसे वो एग्री कर जाए and there should be a common understanding between the auditor and the management. See, zoom in the chart. And now there should be common understanding between the auditor and the management and TCWG with the terms of audit engagement. What are the responsibilities of the management now? Management has responsibility of preparation of financial statement, preparation and presentation, internal control that should be free from material statement, and that they provide with the auditor relevant information, additional information, unrestricted assets. That is AAU information that is with. Now ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वहाँ पे एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उसने चेकिंग करनी है और ऑब्टेनिंग द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट से ऑब्टेन करना है कि उसकी एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन करनी है. नाउ व्हाट शुड बी द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट. ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीज होगी? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फ्रेमवर्क एंड रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट होना चाहिए वहाँ पे. और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंगेजमेंट जो भी उनकी टर्म विद एग्री कोई अलग अलग से वहाँ पे लिखना चाहे तो. Now limitation on scope can be there and that can result in disclaiming an opinion, and in that case he should not accept that part. And in case of recurring audit, if there is a revision of term, then they have to record with the new terms, and that should be if the auditor is with agree, he can accept the audit कि अभी यहाँ पे हम ऑडिट को एंगेजमेंट मतलब हम बना रहे हैं. वहाँ पे ऑडिट हमने अभी स्टार्ट नहीं की ना, कंडक्ट अभी कुछ किया है, हम अभी ऑडिट एंगेजमेंट बना रहे हैं. अगर न्यू टर्म से कोई है, ऑडिटर एग्री हो रहा है वहाँ पे तो एक्सेप्ट कर ले, अगर डिसएग्री हो रहा है ही कैन चेक go with withdrawal or checking the contractuality if there is any. Then if there is any change in terms, now अगर एक बार मतलब होने के बाद अगर कोई नेक्स्ट ऑडिट में अगर कोई चेंज इन टर्म हो रही है, in that case auditor has to check the reasonable justification of the change and auditor is being agree with, then in that case he has to record in the engagement letter and apply the procedures and report and shall not refer to the original term. कि एक बार अगर कोई amend होगी तो original term को रेफर ना करके amended को रेफर करे और कोई कंक्लूजन देना तो उसी के अकॉर्डिंग दे. और ऑडिटर डिसएग्री हो रहा है वहाँ पे कि मैं चेंज नहीं, मैं उसे मतलब रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मिली, इन दैट केस दैट इज बीइंग परमिटेड बाय द मैनेजमेंट. मींस मैनेजमेंट परमिट करिए कंटिन्यू के लिए नहीं कर रही. अगर मैनेजमेंट कह रही है कंटिन्यू दैट इज फाइन. मैनेजमेंट अगर डिसकंटिन्यू के लिए कह रही है देन ऑडिटर हैज टू चेक द that he can withdraw from the withdraw or either he can accept on the basis of some certain condition that will deal in our further pages. Now let's start digging with the essay 210, agreeing the audit terms of audit engagement. This essay include the establishing the certain precondition. Firstly, this essay include the certain precondition that should be present, and that's the responsibility of rest with management and TCWG. Now, objective of auditor is to firstly accept and the continue. कि ऑडिटर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या होगा? एक्सेप्ट भी तभी करेगा एंड कंटिन्यू करेगा ऑडिट के लिए ओनली only when the basis of it is to be performed been agreed with. कि जो एग्रीमेंट हम मतलब एंगेजमेंट लेटर हम परफॉर्म कर रहे हैं वो एग्रीड हो गए दोनों पार्टी से, मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, एंड दैट शुड बी हाउ establishing the precondition from the audit that should be present and confirming whether there is a common understanding between the auditor and management of terms of engagement. means हमने क्या काम करना है, स्कोप क्या रखनी है, फ्रेमवर्क क्या हमारा, क्या चेकिंग रखनी है, हमने किस एक्सटेंट तक रखनी है, that should be covered in that engagement letter. कि now firstly establish precondition for an audit. किया सबसे पहले हमारा वही ऑब्जेक्टिव में क्या है, preconditions that should be present. Now what are the preconditions? Firstly, determining whether financial reporting framework to be applied in preparation is acceptable or not. कि we have to check that data is acceptable. What financial reporting framework should be acceptable? जो मैनेजमेंट प्रिपेयर करी है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है. मीन्स उनके मान लो कोई केस था वहाँ पे उस पर्टिकुलर एंटिटी पे इंड एस एप्लीकेबल थे और उन्होंने अप्लाई कर लिए एएस, so their financials are not prepared with the basis of financial reporting framework. And now next point, obtaining the agreement of management that it acknowledges. ये लाइन ध्यान रखनी है वाली, that it acknowledges, वहाँ पे acknowledge करे and they are understanding with the responsibility. वो understand भी करे अपनी responsibility को acknowledge करके. For what? Preparation of financial statement and relevant fair presentation. Internal control to enable that is necessary to enable preparation of financial statement from
फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर कंट्रोल ठीक है तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हो जाएंगे। एंड थर्ड, प्रोवाइड द ऑडिटर विद AAU, all information additional and unrestricted access. Sorry. Now, factors relevant to auditor determination of acceptability of financial reporting framework. जो फर्स्ट पॉइंट में वहां पे कहते हैं एक्सेप्टेबल होने चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी को कैसे चेक करेगा, वहां पे क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सी फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ एंटरप्राइज, नेचर क्या है एंटरप्राइज का, मतलब किस वे डील कर रही है, कंपनी है या नहीं है, कंपनी है तो फिर हमने डिवीजन 1 और 2 चेक करना है, वहां पे कौन सा एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस पर्पस क्या उनका, जनरल पर्पस है या स्पेशल पर्पस है, टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्म ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स और नॉट। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कंप्लीट सेट है या सिंगल फाइनेंशियल है, मतलब इंटरिम बना रखे उन्होंने या स्टैट्यूटरी में मींस कंप्लीट सेट है एनुअली। वेदर लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब AFRF, कि कोई लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कंपनी लॉ में कंपनीज के ऊपर कहता है वहां पे AS और IND AS, दैट लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइबिंग no AFRF applicable financial reporting framework, and that set the criteria for the auditor to use on the basis of audit of financial statement, कि उसी framework के basis पे audit करें, वहां पे उनकी checking करें। Now there are two framework, general purpose and special purpose financial statement. Now financial statement prepared in basis of to meet the common financial information need of wide range of users। अगर wide range के लिए सिंपल सी बात है कि अगर वाइड रेंज के लिए बना रहे हैं तो जनरल पर्पस है, अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए बना रहे हैं, स्पेशल यूजर्स के लिए, तो स्पेशल पर्पस है, दैट इज विद SA 800 सीरीज। नाउ if there is any deficiency in AFRF that indicating the framework is not acceptable after audit engagement has accepted, means audit engagement accept होगी तो बाद में हमें पता चला कि वो acceptable ही नहीं था, in that case new terms of audit engagement are agreed to reflect changes in framework as previously agreed will no longer accurate, मीन्स अपनी ऑडिट एंगेजमेंट को उन्होंने न्यू टर्म्स पे चेंज करना ही पड़ेगा एज रेलेवेंट विद द फ्रेमवर्क। जो प्रीवियस एग्रीड थी वो रेलेवेंट नहीं होगी वहां पे, विल नो लॉन्गर एक्यूरेट, वहां पे उनको चेंज करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट द चेंज। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ सम एंटिटीज लॉ एंड रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी यूज्ड इन द केसेस ऑफ जनरल पर्पस, कि मींस कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब कर रखे कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करना है। नाउ कंसेप्ट ऑफ, ये लाइन इंपॉर्टेंट, ये वाला पैरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट requires auditor's role does not involve taking responsibility of preparation and of financial statement, कि ऑडिटर के ऊपर ये नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे प्रिपरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ना उसके कंट्रोल, मतलब कंट्रोल चेकिंग की है, उसकी मेकिंग नहीं है वहां पे प्रिपरेशन की, कि अगर एग्जिस्ट नहीं करे कंट्रोल्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बेसिस पे नहीं है फ्रेमवर्क के, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बना के दे उनको। एंड ऑडिटर हैज रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर ऑब्टेन ऑडिट इन फार्स ऑफ मैनेजमेंट इज एबल टू प्रोवाइड एंड प्रोक्योर इट, कि ऑडिटर मतलब वहां पे भी ओके एक्सपेक्टेशन, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है कि वो इन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर लेगा वहां मैनेजमेंट से फर्दर। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन नहीं कर पाएगा तो ऑडिट कैरी ऑन करने की रिक्वायरमेंट है कि वहां पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि फुलफिल नहीं हो पाएगा वहां पे, अगर दो पार्टी के सामने मैनेजमेंट और ऑडिटर के कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ रहे वहां पे। अकॉर्डिंगली प्रीमाइस इज फंडामेंटल टू कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, प्रीमाइस में दोनों पार्टी की सहमति होनी चाहिए वहां पे, क्यों एक वो बात बोलो सहमत हो जाए वहां पे। नाउ इन मोस्ट केसेस मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन, कि मैनेजमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एग्जीक्यूशन, काम एग्जीक्यूट करने के लिए, वाइल TCWG फॉर ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की ओवरसाइट उनकी चेकिंग करें वहां पे जो मैनेजमेंट काम कर रही है। In larger or public entities, a subgroup of TCWG such as audit committee. In case of listed entities or like there are turnovers of paid up share capital, turnover and borrowings, that is fulfilled. Certain entities has to formulate a audit committee. उनके मतलब audit committee फिर चार्ज रखेगी वहाँ पे कि audit committee के as per section 177 roles and responsibilities है कि terms of reference में auditor के केस में क्या है, उनको क्या क्या चीजें चेक करनी है, तो वो oversight रखेगी responsibilities का फिर। Now next, SA 580 provide written representation to fulfill. SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेनी पड़ेगी कि अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट, दिस पैरा इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इफ मैनेजमेंट नॉट एक्नॉलेजेस, इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेते हैं यहाँ पे, दिस वन आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ वेट फॉर अ व्हाइल। नाउ इफ मैनेजमेंट नॉट एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हमने बात की कि एक्सेप्टेबल है, वो एक्नॉलेज करे मैनेजमेंट। इफ मैनेजमेंट इज नॉट एक्नॉलेजिंग इज responsibilities, an auditor is unable to obtain the SAAE. In that case, it is not appropriate to accept that audit engagement unless law and regulation require, कि वहाँ पे ये भी चेक करना कि unless कि अगर law and regulation prescribe कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे सेबी के केस में हमने अगर Q3 की हमने Q1 और 2 की हमने कर ली, Q3 या 4 की हमने कुछ एक्सटेंड तक की है,
तुम उसको लीव नहीं कर सकते। वहाँ पे लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें फुलफिल करके जानी होगी, मीन्स ऑडिट रिपोर्ट हमने इशू करके जानी होगी। इन दैट केस मतलब सबसे पहले क्या है, अगर वो नहीं कर पा रहा, मैनेजमेंट एक्नॉलेज नहीं करी, इन दैट केस ही शुड नॉट एक्सेप्ट, and if in that case unless law and regulation prescribe, if auditor accept, वहाँ पे अगर auditor accept कर रहा है, he may need to explain to management the importance of the matters, कि उसकी importance को management को बताए वहाँ पे, उसकी implications क्या आ सकते हैं audit report में वहाँ पे, जैसे अगर कोई law and regulation prescribe करिए वहाँ पे accept कर रहे हैं वहाँ पे, तो in that case he has to check the particular law and regulations also and implications in the audit report, कि वो क्या अगर disclaimer of opinion issue कर रहा है, in that case मतलब उसको check करनी पड़ेगी। Now FPF means fair presentation framework. It is the importance of the reporting objective of the fair presentation in such that case they are being agreed with the management to include the specific reference to the frame presentation। हमने ऑडिट रिपोर्ट में अपने फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के बारे में भी मेंशन करना होता है कि उसका स्पेसिफिक रेफरेंस हम बात करें वहाँ पे, कि हम ये बात करें कि फेयर जो फाइनेंशियल्स बनाए उनके वो फेयरली प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। एंड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन। हम मैनेजमेंट से भी हम ले लेंगे अपनी कि वो एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे कि वो फेयरली प्रेजेंट किए है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रिस्क्राइब कर रहा है नहीं कर रहा। नाउ नेक्स्ट इंटरनल कंट्रोल नो मैटर हाउ इफेक्टिव, हमने नेक्स्ट सेशन प्रीवियस सेशन में भी किया था कि इंटरनल कंट्रोल कितने इफेक्टिव हैं, लेकिन वो क्या रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं वहाँ पे। नेक्स्ट एन इंडिपेंडेंट audit conducted in accordance with asset does not act as substitute for maintenance of internal control necessary for preparation। कि मतलब क्या है कि मतलब अगर कोई कंट्रोल वहाँ पे मतलब रेलेवेंट है वहाँ पे, और वो मतलब वो सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे वहाँ पे कि मैं ऐसे कि हमने एसेस में कर ली वहाँ पे चेकिंग, इंटरनल कंट्रोल ठीक है तो हमने एसेस मान लिया कि वो ठीक होंगे वहाँ पे, ये उसका वो सब्स्टिट्यूट नहीं है वहाँ पे, दैट इज नॉट द सब्स्टिट्यूट। ये हमने ऑडिट कंप्लायंस की विद रिक्वायरमेंट ऑफ एसेस। नेक्स्ट एग्रीमेंट रिक्वायर्ड विद पैरा 6(1), जो हमने ऊपर एग्रीमेंट हमें चाहिए होगा वहाँ पे, does not imply that the auditor will find that internal IC maintained by management has achieved its purpose and will be free from deficiencies। कि हमने अगर मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन कर ली वहाँ पे एग्रीमेंट में ले लिया, तो उनका ये मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट के जो कंट्रोल्स हैं या जो भी उन्होंने आईसी मतलब इंटरनल कंट्रोल बना रखे वो फ्री फ्रॉम डेफिशिएंसीज होंगे। वहाँ पे वो भी चेकिंग करनी होगी क्योंकि वो कंट्रोल मतलब ऐसे भी बात करते हैं, ऐसे 315 असेसिंग द रिस्क, ऑडिटर हैज टू इवैल्यूएट दैट। And now next, entity's internal control will reflect the need of management। मतलब एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल क्या रिफ्लेक्ट करेगा, मैनेजमेंट की नीड क्या है वहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ रिस्क है एंटिटी पे, और लास्ट लोअर रेगुलेशन कोई रेलेवेंट है कि नहीं है वहाँ पे। जैसे इन द केसेस ऑफ companies that provide to maintain to have the internal financial control in that case, and they had to provide in section board report also in section 134। Now next, to avoid the misunderstanding, it may be appropriate for the auditor to explain the management the scope of responsibility। कि misunderstanding को avoid करने के लिए मैनेजमेंट को एक्सप्लेन भी कर दे अपनी स्कोप क्या, उसका स्कोप क्या है, वो क्या चेकिंग करेगा। Additional information, auditor expects to obtain other information after date of audit reports। Terms of audit engagement में also acknowledge auditor responsibilities। कि मतलब अगर कोई information वो audit report के बाद में पता चली है, in that case what's the responsibility of that, कि वहाँ पे क्या करेगा। मतलब जैसे इन द केस सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे 560 विल अप्लाई, वहाँ सब 560 अप्लाई रहते हैं, वहाँ पे ऑडिटर को अपना क्या रखना है, द एक्शन दैट मे बी एप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी फॉर ऑडिटर कंक्लूड दैट एमएमएस ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट इन अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब हम अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन पहले पता चलती तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं। तो हम अपना ये क्लोज भी मेंशन लिख के चले कि हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वी आर गिविंग ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली। एग्जाम्पल, when third party has assisted with the preparation of financial statement, अगर कोई third party वहाँ पे assist करी preparation के लिए, it may be useful to remind management that preparation of financial statement in accordance with framework remains a responsibility। कि मतलब अगर third party ने financial बनाया तो management ये नहीं कह सकती कि हमारी responsibility नहीं होगी, हट के वहाँ से third party बना के दे रही है, मतलब उन्होंने कोई hire कर लिया, still the responsibility lies with the management only, not with third party। ये check करना है हमें यहाँ पे ये भी। Now agreeing the terms of audit engagement shall be recorded audit engagement letter, कि हम agreement को मतलब रिटर्न में ले लें, suitable form of written agreement में ले लें हम कोई भी suitable में। further like objective and scope, कि हमने क्या किस ऑडिटर हमने करनी है, कि इंटरिम की करनी है, ऑब्जेक्टिव और स्कोप हम डिसाइड कर लें। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, कि हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नोट डाउन कर लें वहाँ पे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की क्या है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, कि फ्रेमवर्क कौन सा एप्लीकेबल है उन पे। And next, reference to the expected form and context of any report to be issued by auditor,
कोई भी अगर इशू रिपोर्ट करनी है उसको कि लाइक ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है तो उसका रेफरेंस भी दे वहाँ पे, कितने एक्सटेंट तक वो इशू करेगा वहाँ पे। नेक्स्ट, लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब टू इनसफिशिएंट डिटेल्स द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि मतलब वो लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है सफिशिएंट डिटेल में कि ये चीजें होनी चाहिए। ऑडिटर नीड नॉट टू रिकॉर्ड देम इन रिटन एग्रीमेंट, कि अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है सफिशिएंट डिटेल में तो उसको रिकॉर्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सेप्शन भी यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमने मेन, कि एक्सेप्ट फॉर लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाइज एंड दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड, कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करी और अंडरस्टैंड कर रही है कि नहीं कर रही। The first point, auditor include engagement letter only reference to the relevant, मतलब अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब है तो ऑडिटर उसका रेफरेंस दे सकता है वहाँ पे बस, कि हमने ये चीज है तो हम उसका वो दे रहे हैं मतलब रेलेवेंट एनेक्चर, मतलब या कोई रेफरेंस दे रहे हैं बस। नेक्स्ट, ऑडिटर विल रिक्वायर्ड टू सीक द रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड, या फिर हम उनसे खाली रिटन एग्रीमेंट बस एक्नॉलेजमेंट ले रहे हैं वहाँ पे कि उन्हें ये चीज पता है वहाँ पे। एंड यूजिंग द वर्ड ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, जो उसमें वो यूज करके हम वो यूज कर लेंगे वहाँ पे। Now, in the case of recurring audit, अगर हमने कोई previous टाइम भी हम ही ऑडिटर थे उसके कोई एंटिटी के, in that case following factors make it appropriate to revise the terms, कि क्या appropriate to revise the terms, हमने कब रिवाइज करना है। in the case of recurring audit, any indication that management misunderstood, कि हमने जो ऊपर ऑडिट एंगेजमेंट में ऑडिट स्कोप ऑब्जेक्टिव या स्कोप लिखा है, अगर कोई वो उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो हम वहाँ पे चेंज करें, उनको रिवाइज करें टर्म्स को प्रॉपर्ली। एनी इंडिकेशन ऑफ रिवाइज एंड स्पेशल टर्म्स, अगर कोई स्पेशल टर्म बाद में आ गई है या मैनेजमेंट कह रही है, दैट इन दैट केस if there is any change in senior management law and regulation framework और other reporting requirement, कि जो भी हमारे लोग रेगुलेशन चेंज हो गया, फ्रेमवर्क चेंज हो गया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हो गया, इन दैट केस आल्सो। लास्ट, सिग्निफिकेंट चेंजेस ओनरशिप, कि अगर कोई ओनरशिप ही चेंज होगी वहाँ पे, मतलब कोई सिग्निफिकेंट वहाँ पे सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे ऊपर चेंज है, वहाँ पे इन पॉइंट्स में ये ध्यान रखना है, यहाँ पे चेंज है और थर्ड पॉइंट में सिग्निफिकेंट चेंज है यहाँ पे। एंड लास्ट, सिग्निफिकेंट चेंज ओनरशिप एंड नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी बिजनेस, कि अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है नेचर और साइज में, इन दैट केस ऑडिटर हैज टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। नाउ ऑडिटर नॉट एग्री टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन इज देयर, कि ऑडिटर वहाँ पे एग्रीमेंट मतलब चेंजेस को ना एग्री करे इफ देयर इज एनी नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट यूं ही कह रही है कि एग्रीमेंट को चेंज कर दो, हम ये वेरीफाई नहीं, ऑडिटर ने जैसे कहा कि हमें ये प्रोवाइड कर दो, आप हमने एंगेजमेंट में लिख रखा है, मैनेजमेंट कह रही है नहीं इसको आप चेंज कर दो। नाउ फॉर दैट ऑडिटर हैज टू सीक द रीजनेबल जस्टिफिकेशन। नाउ ऑडिटर कंसीडर जस्टिफिकेशन पर्टिकुलरली इम्प्लीकेशन ऑन द स्कोप, कि अगर कोई क्या कर रहा है वहाँ पे उसकी स्कोप पे लिमिटेशन थी, वहाँ पे इम्प्लीकेशन आ रही है तो नहीं करेगा उसको चेंज। नेक्स्ट, चेंज इन सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द एंटिटी रिक्वायरमेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कंसीडर concerning nature of service originally requested may be considered reasonable basis for requesting change, कि मतलब उन्हें कोई स्पेसिफिक टर्म मतलब टैक्स ऑडिट चाहिए थी या वो कह रहे हैं हमें स्टैट्यूटरी ऑडिट चाहिए थी, वो ही बाद में कॉन्फ्लिक्ट आ गया वहाँ पे और वो रिटर्न एग्रीमेंट में था नहीं, तो इन दैट केस आल्सो दैट दे कैन चेंज, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या उन्हें यही काम करना है वो कर सकते हैं बाद में। एग्जांपल, ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एसएई रिगार्डिंग रिसीवेबल्स एंड एंटिटी आस्क फॉर ऑडिट एविडेंस, मतलब ऑडिटर को ने वहाँ पे कोई एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा डेटर्स के केस में, रिसीवेबल के केस में, और उसने एंटिटी से आस्क किया कि मैं ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करो, और मैनेजमेंट कह रही है वहां से कि अपने ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज कर दो टू अवॉइडिंग द क्वालिफिकेशन डिस्क्लेमर, तो उसी पॉइंट को चेंज करो, ये रीजनेबल, दैट इज नॉट रीजनेबल जस्टिफिकेशन, एन ऑडिटर शुड नॉट डू दिस। नाउ बिफोर एग्रीइंग द change of auditor has to review and related services in addition to any legal or contractual implication, ये जब भी वो चेंज करना चाह रहे हैं रिलेटेड सर्विस को या कुछ कहीं पे भी, तो उसमें लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लीकेशन चेक करनी है उस चेंज की, कहीं कोई हमारी लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल चेंज वो तो नहीं इम्प्लीकेशन हो जाएगी कहीं वहाँ पे। नाउ ऑडिटर कंक्लूड दैट देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजिंग द रीडर, कि क्या कि रीडर को हमने कंफ्यूज करने के लिए बचा रहे हैं, तो इन दैट केस रिपोर्ट वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू, कि रिपोर्ट शुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस, ये वाला भी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। क्या ओरिजिनल एंगेजमेंट का मतलब वहां पर रेफरेंस ना दे वहाँ पे, जो रिपोर्ट अब वो चेंज करे ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट का रेफरेंस ना दे वहाँ पे अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन आ गया उसने। नेक्स्ट, एनी प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन ओरिजिनल एंगेजमेंट एक्सेप्ट वेयर ऑडिट एविडेंस इज चेंज्ड टू अंडरटेक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स and reference to procedure performed in normal report, कि मतलब जो उसने ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट में जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किए थे तो उसका भी रेफरेंस ना दे वहाँ पे, उसको लिखे ना कि मैंने जो ये किए थे, एक्सेप्ट
कि वही अगर जो उसने जो फर्दर उसने चेंज हुआ है वहाँ पे जो टैक्स ऑडिट के लिए मतलब जो रेलेवेंट थे, जैसे मेरे एग्जांपल में, तो अगर उसके लिए कोई रेलेवेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया तो उसके बारे में मेंशन कर सकता है, लेकिन उसने अगर स्टैट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रोसीजर्स किए होंगे उसको मेंशन नहीं करेगा वहाँ पे वो। नाउ इफ ऑडिटर अनेबल टू एग्री टू चेंज ऑफ, वहाँ पे अगर ऑडिटर अनेबल है वहाँ पे कि उसे रीजनेबल नहीं मिली तो अनेबल है वहाँ पे, नहीं कर पा रहा, नहीं करेगा वहाँ पे, तो चेंज द टर्म्स एंड इज नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, और मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि आप ओरिजिनल नहीं कर सकते यहाँ पे, ऑडिटर शेल विड्रॉ फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट पॉसिबल अंडर लॉ एंड रेगुलेशन, मतलब लॉ एंड रेगुलेशन की केयरफुल चेक करेगा, मतलब वहाँ पे मीन सेबी कंप्लायंस वहाँ पे कि वो कर सकता है नहीं कर सकता है वहाँ पे, तो वो चेक करके करेगा वहाँ पे। इन डिटरमाइनिंग एनी लीगल ऑब्लिगेशन फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल एंड अदर अदरवाइज टू रिपोर्ट, कि मतलब वही सेबी के केस में उसको रिपोर्ट करके जाना होता है वहाँ पे। नाउ auditor shall determine whether there is any conflict between the financial reporting standards and additional requirements, अगर कोई conflict exist कर रहा है वहाँ पे financial reporting standards में and additional requirement में जो additional उसे चाहिए, in that case you should discuss with the management the nature of audit additional requirement, कि क्या additional requirement है वहाँ पे, and further और management shall agree with the, उन्हें agree उसमें agreement भी चाहिए दोनों की, मतलब agree दोनों की सहमति भी चाहिए। in the additional requirement can be met through additional disclosure, कि वो मैनेजमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर देगी उस पॉइंट का, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एएफआरएफ कैन बी अपेंडेड अकॉर्डिंगली, मतलब डिस्क्रिप्शन हम चेंज कर देंगे फ्रेमवर्क का, अगर एएस से इंडेस हो गया मतलब वो अकॉर्डिंगली फ्रेमवर्क को चेंज कर देंगे वहाँ पे, अगर दोनों में से अगर चेंजेस हो गए वहाँ पे तो ठीक है। इफ नाइदर इज पॉसिबल ही शुड डिटरमाइन टू मॉडिफाई द ओपिनियन नाउ, जो सबने मॉडिफाई ओपिनियन पे चला जाएगा अगर कोई दोनों नहीं कर पा रहा वहाँ पे तो। नाउ if auditor determine the financial reporting framework prescribed by law and regulation would be unacceptable, कि financial reporting framework should be unacceptable, वो नहीं कर पाएगा वहाँ पे, but for the fact prescribed by law and regulation auditor shall accept only if, अगर framework नहीं कर पा रहा auditor accept कर रहा है वहाँ पे, तो auditor को क्या करना है, management agree to provide additional disclosure, management agree है वहाँ पे कि additional disclosure provide करें वहाँ पे, क्यों, ताकि वो जो मिसलीडिंग है, ताकि यूजर्स जो भी इंटेंडेड यूजर्स है उनको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आप पहुंच जाए वहाँ पे। एंड बी पॉइंट रिकॉग्नाइजिंग इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट दैट ऑडिट रिपोर्ट विल इनकॉर्पोरेट ईओएम पैरा, ये लाइन बड़ी, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या अगर कोई मतलब वही अगर मतलब एक्सेप्ट कब कर पाएगा, मतलब ऑडिट एंगेजमेंट वो ये लिख रहा है कि हम ईओएम में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में हम इसको पॉइंट को डालेंगे अपना, और मैनेजमेंट एग्री करगी, और अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन नॉट इंक्लूड, मतलब अगर लॉ एंड रेगुलेशन को छोड़ के ऑडिटर को इन फ्रेज को यूज नहीं करना वहाँ पे, क्या प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, कि मतलब सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम वहाँ पे लिखते हैं ये ट्रू एंड फेयर व्यू में या रीजनेबल एश्योरेंस जब दे रहे होते हैं, अगर हमें कोई वहाँ पे लॉ एंड रेगुलेशन मतलब कोई एक्सेप्टेबल था वहाँ पे फ्रेमवर्क हमारा, तो हम ये लाइन लिखेंगे नहीं, और गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू ये दो फ्रेज हम यूज ही नहीं कर सकते अपने उसमें। नाउ मूविंग टू लास्ट, if condition in previous audit does not present, auditor may require by law and regulation to take audit evidence, means previous audit में जो हमने audit मतलब वो कोई evidence obtain किए थे वो present नहीं है वहाँ पे, in that case evaluate the effect of misleading nature of financial statement, कि उसका mislead तो नहीं करे वो, अगर उसका impact हमारा audit report पे तो नहीं आ रहा, और appropriate reference to matters in terms of audit engagement, मतलब उसका reference भी check करें वहाँ पे, कि मतलब जो प्रीवियस में कोई उन्होंने एस्टिमेशन की थी मेजर एस्टिमेशन वो एग्जिस्ट ही नहीं करे वहाँ पे, तो उसका मिसलीडिंग नेचर तो नहीं था उनका कहीं, मतलब वो चेंज करना तो वो चेक करेगा ऑडिटर। नाउ लास्ट पार्ट, इन सम केसेस law and regulation prescribe layout and working of audit report significantly different from requirement of essays, कि अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है वर्किंग ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है, एंड दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ एसेस, जो मतलब एसेस के रिक्वायरमेंट है उससे डिफरेंट कर रहे हैं, इन दैट केस ऑडिटर शैल इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है, यूजर्स माइट अंडरस्टैंड एश्योरेंस ऑब्टेन फ्रॉम ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल्स, मतलब यूजर्स कैसे ऑब्टेन करेंगे एश्योरेंस को वहाँ पे, मतलब वो कैसे लिख पाएगा वहाँ पे। एंड नेक्स्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन ऑडिट रिपोर्ट कैन मिटिगेट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो मतलब मिटिगेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कर गई तो ठीक है, इन द इफ अगर वो नहीं कर पा रही, इन दैट केस ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर मतलब ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही ना करे वहाँ पे, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है वहाँ पे मतलब छोड़ दे उसको वहाँ पे। ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड रेगुलेशन डज नॉट कंप्लाई विद एसए, मतलब अगर एसएस को कंप्लायंस में नहीं है तो उसको वहाँ करे ही ना, एक्सेप्ट ही ना करें इन दैट केस। सो नोट इंक्लूड रेफरेंस इन ऑडिट रिपोर्ट दैट ऑडिट कंडक्टेड विद अकॉर्डेंस विद पैरा, या तो हम करें ना, अगर हमने एक्सेप्ट कर ली तो हम इसको ये ना लिखे कि ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसए, इसका हम रेफरेंस नहीं देंगे कहीं भी हम ऑडिट रिपोर्ट में। एंड पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग में मतलब क्या,
he may consider including statement in audit report that audit not connecting with assets and including to extent practically applied. मतलब ये लाइन लिख देगा अपनी वहां पे वो कि स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट में ये लिख देगा कि ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड विद अकॉर्डेंस विद एसेस एंड और ये लिख सकता है कि टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल ही अप्लाइड दैट. So here end of essay 210 revision. Any doubt or any clarification you needed? Hello. Hello. Vinay, come to page number 6. Yeah. One second. Let me stop.